Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the literature book of standard 4. The name of the book is Usher In and it is the 13th chapter. The name of the chapter is Robin Hood Comes for the Shooting Match. We have already done its part 1 and this is the part 2 of this Robin Hood chapter. Robin Hood Comes for the Shooting Match. The sheriff sent his men into the Sherwood forest again and again, but never could they catch Robin Hood and his men. The Nottingham people loved Robin Hood. This made the sheriff still more angry. "Why can't you catch him?" he cried. His men looked at him. "He is much more familiar with the forest," said one. "We need more men." "More men?" cried the sheriff. If the king knew this, he stopped and thought for a while. "The king, that is it. Get ready, everybody. We will go to London. King Henry will help us." After a few days, the sheriff and his men reached London. They were taken to the king's court. "My lord," said the sheriff, "there lives an outlaw, Robin Hood, in the Sherwood forest. I have tried to catch him, but he always gets away." तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि रॉबिन हुड ने एक राजा के एक आदमी को मार दिया था, इसीलिए वह फिर अपने घर वापस नहीं लौटा और वहीं जंगल में रहता था। इस बात से जो शेरिफ और बिशप बहुत ही उससे गुस्सा थे और उन लोगों ने 100 लोगों को भेजा था, 100 मैन को भेजा था रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो शेरिफ जो है अक्सर बार बार अपने लोगों को जंगल भेजता रहा शेरवुड फॉरेस्ट रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए, पर वह लोग उसे कभी भी नहीं पकड़ पाए। ठीक है, नॉटिंघम जो जगह था वहाँ के लोग जो थे वो रॉबिन हुड को बहुत प्यार करते थे, उन्हें वो पसंद करते थे। इस कारण जो है शेरिफ और भी नाराज़ हो जाता था। वह अपने लोगों से कहा उसने, "तुम लोग आखिर उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे हो?" गुस्से से वह उन्हें कह रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि उस जंगल को रॉबिन हुड हमसे ज़्यादा अच्छे से जानता है। हाँ, वो ज़्यादा फेमिलियर है, उससे अच्छे से जंगल का एक एक रास्ता, एक एक कोना पता है। हम लोगों को और लोगों की ज़रूरत है। शेरिफ नाराज़ हो गया। वो बोला, "और लोगों की? तुम लोगों ने कभी सोचा है अगर राजा इस बारे में सुनेंगे तो?" यह कह के वह चुप हो गया और वह सोचने लगा। फिर उसने कहा, "चलो चलो, सब तैयार हो जाओ, हम लोग राजा किंग हेनरी के पास जाएंगे और उन्हें ये बात बताएंगे। हम लोग लंदन जाएंगे, किंग हेनरी हमारी मदद करेंगे।" फिर कुछ दिनों के बाद शेरिफ और उसके जो लोग थे वो लोग लंदन पहुंच गए। उन्हें राजा के कोर्ट में ले गया गया, राजा के दरबार में ले गया गया। वहाँ पहुँच के उसने राजा को कहा, "माई लॉर्ड" कहते हैं ना, योर मैजेस्टी या माई लॉर्ड कहते हैं राजा को। उसने उसी तरह से रिस्पेक्ट देते हुए कहा कि माई लॉर्ड, एक आउटलॉ रॉबिन हुड शेरवुड जंगल में रहता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, पर वह हर बार भाग जाता है। "We have heard of him," said the king. "Some say he is a good man. He shoots your deer, he robs the rich people," the sheriff said. The king was angry. He asked the sheriff to see that the laws were obeyed. The king warned that he would get another sheriff if the sheriff couldn't do that. So the sheriff and his men rode sadly home. The sheriff was thinking all the time how to catch Robin Hood. At last he decided to have a shooting match. He offered a fine prize, a golden arrow, to the winner. "Do you think he would get into the match?" one of his men said. "I know him," said the sheriff. "If there is a shooting match, he will be there." "But he won't be wearing his green dress," said another. "No," said the sheriff, "but we can identify him. He has long yellow hair." The news about the shooting match spread far and wide. The prize was a golden arrow. Robin and his men also heard about the match. ठीक है, तो राजा ने कहा कि नहीं, मैंने तो सुना है रॉबिन हुड के बारे में और मैंने सुना है वह अच्छा इंसान है। तो शेरिफ ने कहा कि उसने आपके हिरन को मारा, वह जो बहुत ही धनी लोग हैं उनको वो रॉब करता है, मतलब उनके घरों में चोरी करता है, लूट करता है उनके घरों से। तो राजा बहुत नाराज़ हो गए। वो बोले, "शेरिफ, तुम ध्यान रखो कि सब लोग कानून का पालन करें, जितने मैंने लॉज बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, सब उसका पालन करें, सब उसे माने। जाओ और उसे पकड़ो रॉबिन हुड को। अगर नहीं पकड़े तो तुम्हें हटा के मैं दूसरे किसी को शेरिफ बना दूंगा।" यह बात सुनकर शेरिफ और उसके लोग जो हैं दे रोड सैडली बैक, मतलब वो जो घोड़ों पे उस समय जाते थे तो वो लोग घोड़े पे बैठ के वापस आ रहे थे, बहुत ही उदास होते हुए हो गए थे वो लोग, क्योंकि राजा ने कुछ मदद नहीं की और उन्हें डांट दिया, इसलिए वो उदास थे और वो वापस आ रहे थे। आते वक्त शेरिफ रास्ते भर सोचता रहा कि मैं क्या करूँ। फिर उसको एक आइडिया आया। उसने कहा कि मैं एक शूटिंग मैच रखूँगा, हाँ, तीरंदाजी प्रतियोगिता रखूँगा, जिसमें कि धनुष बाण से तीर का निशाना लगाना होगा और उसमें मैं एक अच्छा प्राइज़ रखूँगा, एक गोल्डन एरो दूंगा, सोने का तीर दूंगा। ठीक है, और उसमें रॉबिन हुड जरूर आएगा। तो उसके एक आदमी ने पूछा, "आपको क्या लगता है, आपको पूरा विश्वास है कि रॉबिन हुड जरूर आएगा?"
तो शेरिफ ने कहा हाँ 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 बिल्कुल, अगर शूटिंग मैच है तो वह ज़रूर आएगा। तो उसके लोगों ने कहा कि पर वह तो जो ग्रीन ड्रेस हमेशा पहनता है रॉबिन हुड, हो सकता है उस दिन वह ग्रीन ड्रेस नहीं पहने। तो शेरिफ बोला नहीं, फिर भी हम उसे पहचान लेंगे क्योंकि उसके लंबे पीले रंग के बाल हैं, लॉन्ग येलो हेयर है। ठीक है, अब शूटिंग मैच की खबर चारों तरफ फैल गई और यह भी पता चल गया कि प्राइज़ जो है वो एक गोल्डन एरो था, सोने का तीर था। रॉबिन और उसके लोगों ने भी इस मैच के बारे में सुना। Men, said Robin, I think one of us can win that arrow, but the sheriff has arranged this shooting match just to catch you, said an outlaw. Do you want everyone to say Robin Hood was afraid to come? Robin laughed. No, but I don't want to see you hang, said his companion. You won't, said Robin. I am going to shoot that arrow. He made a plan. Robin asked his men to wear old clothes and to take their swords. They would spread out among the crowd. If anything went wrong, they would take their swords and come up. The match was held just outside the city. The people started coming. At last the sheriff and his wife came. When the sheriff had sat down, he told his men to blow the horn. The men who were to shoot came forward. The sheriff told them the rules. जब यह खबर चारों तरफ फैल गई कि शूटिंग मैच होने वाला है, तब जो है रॉबिन हुड अपने साथियों से बात कर रहा है। वह बोल रहा है कि सुनो दोस्त, हम में से भी कोई एक वह एरो जीत सकता है। पर उसके एक दोस्त ने कहा कि शेरिफ ने यह मैच सिर्फ तुम्हें ही पकड़ने के लिए किया है, या तुम जानते हो तुम्हें पकड़ने के लिए किया है। तो रॉबिन हंसता हुआ बोला, तो क्या तुम यह चाहते हो कि लोग यह बोले कि रॉबिन डर गया और वह आया नहीं मैच के लिए? तो उसके दोस्त ने कहा, उसके कंपेनियन जो था, उसका साथी, उसने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता लोग ऐसे कहें, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हें फांसी लग जाए, तो तुम पकड़े जाओ और फांसी लग जाए। तो वो बोला कि रॉबिन कहा कि नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं चाहोगे और ऐसा होगा भी नहीं। मैं उस एरो को शूट करके रहूँगा, है ना, मैं मतलब कि मैं शूटिंग मैच में ज़रूर जाऊँगा। उसने अपने लोगों को कहा कि तुम लोग जितने मेरे साथी लोग हो, तुम लोग सब पुराने कपड़े पहन लो, हाँ, और अपने तलवार भी साथ ले लो, सोर्ड्स मतलब तलवार, और तुम सब पूरे भीड़ में इधर उधर बिखर के रहना। अगर कहीं कुछ गलती हो गई, अगर शेरिफ के मैन मुझे पकड़ने को दौड़े, तुम लोग अपनी तलवारें निकाल लेना और मुझे बचा के वहाँ से ले जाना। जो मैच था वो सिटी के बाहर हो रहा था, खुली जगह पे हो रहा था। लोग आने लगे मैच के दिन मैच देखने के लिए। आखिर में शेरिफ और उसकी पत्नी भी आए। वो लोग अपने चेयर पे, अपने सीट्स पे बैठ गए। उसके बाद शेरिफ ने हॉर्न बजाने को कहा। ठीक है, जब भी कुछ कंपटीशन वगैरह शुरू होता है तो या तो विसल बजाते हैं या हॉर्न बजाते हैं कि हाँ कंपटीशन शुरू होने वाला है। तो उसने अपने लोगों को कहा कि अब हॉर्न बजा दो, हाँ, वो जो है भोंपू बजा दो जो बोलते हैं। उसके लोगों ने हॉर्न बजा दिया। फिर जो लोग शूट करने वाले थे, मतलब जो कैंडिडेट्स थे, प्लेयर्स जो थे जो शूट करने वाले थे, वह सब सामने आ गए और शेरिफ उनको रूल बताता गया। किसी भी गेम में रूल बताया जाता है ना कि किस तरह खेलना है, आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते, उसके पीछे नहीं जा सकते, ऐसे बहुत सारे रूल्स होता है ना। तो शेरिफ ने उन सबको रूल बताया। The match started when all had come. The sheriff and his men watched carefully. The first round was over. At last 10 men were left. Most of them were well known. 2 came from a nearby town. Another big man was from London. He wore a blue suit. The last one was a stranger in a red suit. He wore a patch over one of his eyes. The sheriff asked his men to watch the stranger. The size was same, but his hair was brown. Robin had long yellow hair. The stranger won the match by shooting 3 arrows in the center of the target. His 3 arrows looked like one big arrow. The stranger took the golden arrow and walked off. ठीक है, जब सारे लोग आ गए तब मैच शुरू हुआ। ठीक है, शेरिफ और उसके लोग जो हैं वो सारे कैंडिडेट्स को बहुत ही ध्यान से देखने लगे। फर्स्ट राउंड पूरा हो गया। फर्स्ट राउंड के बाद 10 लोग और बच गए थे। फाइनल पार्टिसिपेंट्स 10 लोग थे। ठीक है, ज़्यादातर उनमें से लोगों को शेरिफ पहचानता था। ठीक है, 2 पास के शहर से आए थे और एक बड़ा सा आदमी था, वह लंदन से आया था। उसने ब्लू कलर का एक सूट पहन रखा था। और एक आखिरी जो आदमी था वह एक स्ट्रेंजर था, एक कोई अपरिचित था जिन्हें वह पहचान नहीं पा रहे थे, और वह रेड कलर का एक सूट पहना हुआ था और उसने अपने आँखों के ऊपर, एक आँख के ऊपर पैच लगाया हुआ था।
जैसे डाकू लोग लगाते हैं ना, एक आंख से देखेंगे, एक आंख के ऊपर ब्लैक कपड़ा लगाए रखते हैं, तो उसी तरीके का उसने भी पैच लगाया था। तो शरीफ ने अपने लोगों को कहा कि इस आदमी को, इस स्ट्रेंजर को ध्यान से देखते रहो, हो सकता है यही रॉबिन हुड होगा। पर वो लोग उसे ध्यान से देख रहे हैं, उसके जो हाइट वगैरह था वो बिल्कुल रॉबिन हुड को मैच कर रहा था, पर उसके बाल जो थे वो ब्राउन कलर के थे, जबकि ये लोग जानते थे कि रॉबिन हुड के बाल कैसे हैं, लंबे येलो कलर के हैं। तो स्ट्रेंजर जो है वह लास्ट में मैच जीत गया। उसने 3 एरो लगाए, जो कि बिल्कुल जो टारगेट होता है उसके मिडिल में लगाना पड़ता है, तो उसने 3 एरो इस तरीके से लगाए कि पूरे टारगेट के मिडिल में गया। ऐसा लग रहा था कि तीनों जुड़ के एक बड़ा एरो बन गया है। उसने यह प्रतियोगिता जीत ली, कंपटीशन जीत लिया, और वह जो है उसे प्राइज़ में गोल्डन एरो मिला। वह गोल्डन एरो लेके वहाँ से चुपचाप चल दिया। Later that day, strangely dressed men hurried through the Sherwood forest. When they met, they took off their strange clothes. They were Robin Hood's men in green. They talked and laughed about the great shooting match. One man pulled off his red suit, then he took off the patch from one of his eyes. He put his hand to his hair. I won't get this brown color out of my hair very soon. He held up Sheriff's golden arrow. The men cheered. उस दिन जब दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था, बहुत समय बीत गया, तो अजीब अजीब से कपड़े में पहने हुए लोग सब शेरवुड जंगल पहुंच गए। और जब वो लोग एक दूसरे से मिले तो उन लोगों ने अपने अजीब कपड़े खोल दिए, चेंज कर लिए। वहाँ पे वो लोग कौन थे? वो रॉबिन हुड के लोग थे, जो कि ग्रीन, दे वर रॉबिन हुड्स मैन इन ग्रीन, मतलब रॉबिन हुड और उसकी जो पूरी टीम थी वो ग्रीन कलर के कपड़े पहनते थे। तो वो वही लोग थे, जंगल में रहने वाले, ग्रीन कलर के कपड़े पहनने वाले। वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, शूटिंग मैच के बारे में बातें कर रहे थे। उसमें से एक आदमी ने अपना रेड कलर का सूट को खोल दिया, चेंज कर दिया, और अपने आंखों के ऊपर से एक पैच हटा दिया। जो ये कौन था? वही स्ट्रेंजर जिसने मैच जीता था। उसने अपने हाथ अपने बालों पे लगाए और बोला कि मेरे बालों के ये ब्राउन कलर तो जल्दी जाएंगे नहीं, इन्हें जाने में काफ़ी समय लगेगा। उसके हाथों में क्या था? शेरिफ का दिया हुआ गोल्डन एरो था, क्योंकि ये वही स्ट्रेंजर था जो जीत चुका था। द अदर मैन चीयर्ड, बाकी लोग बहुत खुश हुए, उसको बधाई दे रहे थे। That evening the sheriff had a great feast. The sheriff and his men were enjoying the feast. Robin Hood must have been afraid to come, said the sheriff. I am glad to know he was afraid. Just then something flashed over his head. An arrow flying through the open window struck the wall. A piece of paper was wrapped around it. With trembling hands the sheriff took the paper and read, Thanks for the golden arrow, dear sheriff, kind and good. The stranger dressed in dirty red was your old friend Robin Hood. उस शाम जो है शरीफ ने एक बड़े भोज का आयोजन किया था, दावत का आयोजन किया था। वो और उसके जो लोग थे वो लोग बड़े खुश थे और दावत का मज़ा ले रहे थे। और वो लोग बातें कर रहे थे कि रॉबिन हुड लगता है डर गया, वह नहीं आ पाया, मुझे बहुत खुशी है कि वह डर गया। उसी समय जो है शरीफ के सर के ऊपर कोई चीज़ तेज़ी से चमकी, हाँ, और एक तीर उड़ता हुआ आया। खुले शरीफ के घर का विंडो खुला था, उस विंडो से एक तीर उड़ता हुआ आया और शरीफ के सर के ऊपर से जाता हुआ जाके सीधे सामने के वॉल में अटक गया। क्या होता है कि पहले उधर इंग्लैंड की तरफ में लकड़ियों के घर ज़्यादा होते हैं, तो लकड़ी के घर में आके वह तीर अटक गया। उस तीर के आगे एक पेपर लगा हुआ था, उस पेपर में कुछ लिखा हुआ था। शरीफ पूरे बहुत ही घबरा गया, क्योंकि वह तीर उसकी जान ले सकता था। वह उसके सिर के ऊपर से ही गुजरा था। वह कांपता हुआ, ट्रेम्बल करता हुआ, कांपते हुए हाथों से उसने उस पेपर को उस तीर में से निकाला और उसमें पढ़ा। उसमें लिखा था, सुनहरे तीर के लिए धन्यवाद डियर शरीफ, बड़े प्यारे और दयालु। वह जो अपरिचित था डर्टी रेड कलर के ड्रेस में, गंदे से रेड कलर के ड्रेस में जो अपरिचित था, वह आपका पुराना दोस्त रॉबिन हुड ही था। ठीक है, तो रॉबिन हुड ने बता दिया शरीफ को कि वह मैं ही था, मैं कोई डरा नहीं था आने के लिए, मैं आया और शूटिंग मैच जीत के गोल्डन एरो लेके गया। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि रॉबिन हुड बहुत ही साहसी था, है ना। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है और इसका हम लोगों ने दोनों पार्ट पढ़ लिया है और बहुत इजी चैप्टर था, क्लियर था, हार्ड वर्ड्स भी नहीं थे, आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे और आप सब लोग उसका बेनिफिट उठाएंगे। थैंक यू।